last but not the least, जो देते हो वो पाते हो. I say I love life and life loves me. That if Sheen Wigs were a character, how would you like to describe its personality? अरे wow, such an interesting question. Really nice. Artists हैं, who are also trying to create a niche for themselves. Were you little doubtful, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? Would I be able to live up to the expectations or not? So what were your thoughts that time? Somehow I think there's an individual call, and once when I Whenever I come to NSD, it always instills in me a feeling that it is just not a formal institute. In fact, it is a creative force where art becomes prayer. I personally feel that NSD just doesn't train actors, it transforms them. So Kalpa Mahendru is one such example. She is not only an actor performer trained by the creative soul of NSD. In fact, she is also a craftswoman whose wigs have transformed many actors fully into their characters. While theatre gave her a stage to express, her wigs, elevated many performances, proving that artistry not only lives on stage, in fact, behind the camera as well. So without any further delay, let me just invite Sukalpa Mahendru ji. Hi, thank you so much for your warm words of appreciation. They really touch my heart. Thank you. Hanji Sukalpa ji, you and I are meeting, at the premises of NSD. So I just need to know what brought you to NSD. Why did you feel that NSD needed you or you needed NSD? I think it's my opportunity. I feel blessed that I got an opportunity to make wigs for NSD artists for the demand. जैसा जैसा किसी डायरेक्टर के मन की चाहत थी अपने कैरेक्टर को देखने की, जिस फॉर्म में मेरा काम बालों तक सीमित होता था, what I made, whether it was their wigs, their mustaches, beards, choti, judas, anything, whatever connected with hair. And how it happened was that I remember my journey in a quick, I would say, in 1989 I started Sheen Wigs Studio, and in 1980 I started making wigs for medical purposes, that is for cancer patients, for metabolic disorders leading to any loss of hair. That was my work. But in 1991, my connect with NSD started, which lasted more than a decade. I was introduced to Ibrahim Al-Qazi by the celebrated actress Surekha Sikri. Surekha ji introduced and said she is into making of wigs. This was my introduction. And then Ibrahim Al-Qazi sir said, if you could ma'am make 3 wigs for our upcoming play by Maharishi Mohan, and the 3 stages of Einstein. That was the first project. There were no times, and they were sharing of what we have, WhatsApp and all. I used to sit in the library, see everything, and that's the way we started. And that was the first thing. It went on and it continued. Then number of things followed. I enjoyed so many myself. Khubsurat Bahu with Seema Biswas. Seema Biswas used to keep on, oh, here goes my baby also. Seema Biswas was the one who would see, she would come and sit at studio to see what all shutilas and what all things are being made for her. She would take personal interest in all that. And then there was Saurabh Shukla was in Hasiram Kotwal. I did so many. Then Achhar Ka Ek Din. That was, oh my, wonderful. Abhijit Larry used to come for every little thing. He used to come to the studio to see how are the things functioning. And this particular thing, that was very nice for me also. Reason I had small kids. And when he saw, he said, why don't you introduce them to LTG? And he's the one who said, and they were in LTG. They got a chance to work. My son was
selected for the role of Sher Shah Suri for the TV serial, The Young Boy. And then my daughter got selected for Firdaus, a tele-serial by Som Bakshi. And this, it is just not till here. But somehow the interesting part was when in NSD my time was very, very regular because one play after the other, another director, third, different sequences. So I used to sit over there with them. और जब भी रिहर्सल्स होते थे, रिहर्सल्स में कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से तो नहीं होता था और वो एंड आई वाज द वन जो प्रॉक्सी कैरेक्टर मैं प्ले करती थी. आई यूज्ड टू डू द प्रॉक्सी एंड उस प्रॉक्सी के अंदर आई नेवर रियलाइज्ड कि मुझे डायलॉग्स ही याद हो जाते थे और आई गॉट नोटिस बाय अलकाजी सर ओनली एंड वंस व्हेन ही सॉ तो मैंने कहा सर वो आपका कैरेक्टर नहीं आया हुआ ना तो मैंने ही कर दिया. कहते हैं नहीं हम तो कह रहे हैं आप थिएटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते. What a nice thing it would have been. Ma'am, were you a little skeptical in the beginning that इतना बड़ा project है, they are so big names in the industry, theatre was also that time, in its nascent stage, but again, artists के लिए wig बनाना और इतने acclaimed artists हैं, who are also trying to create a niche for themselves. Were you a little doubtful, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, would I be able to live up to the expectations or not? So what were your thoughts that time? Somehow I think there's an individual call, and once when I was at NSD and my introduction, though I never knew anyone over here, how it happened, I even remember Ram Gopal Verma ji, I just saw here also, where he's also the one who took an active participation in my selection, in my work. And मेरे मन में कभी ये दुविधाएं कम आती रही. मेरे को ऐसा ही लगता है, I don't know, कि ये चीज़ आई है, I think your mind controls a lot of things. और मेरा मन कहता था कि जो काम मेरे पास आया है वो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा. That was my approach. तो घबराहट नहीं होती थी क्या हो जाएगा, हद से हद क्या होगा. मैम चाहे आप कहीं पर भी हम किसी भी जॉब प्रोफाइल को लें, चाहे टीचिंग है, चाहे डिफेंस है या फिर एक कॉर्पोरेट जॉब ही क्यों नहीं, एनकरेजमेंट समथिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो एक किसी भी इंसान को चाहिए. सो आई जस्ट नीड टू नो कि आपकी जो एंट्री हो रही थी थिएटर में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हो रही थी, दैट समबडी who is actually trying to create or try to accessorize the looks of the artist. So what kind of encouragement you were looking forward to? Okay, see, basically, let me say, for me, my simple funda in life, जिस चीज़ में आपको आनंद आता है उसको करने में बहुत मज़ा आएगा, करोगे. एंड आनंद आई अप्लाई जस्ट एज द वर्ड सेज आनंद. हम अक्सर कहते हैं ना, ओह बड़ी, हमारे एक पंजाबी में भी कहावत है, बड़ा शुक्र मिला है, बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आया. एंड अदरवाइज ऑल्सो एनी स्मॉल थिंग यू डू एंड यू फील ओह बहुत आनंद आया. दैट आनंद, that means that connects you. That anand is the word जो आपको आपकी आत्मा से connect करता है. So basically you were your own motivation. I just feel things should stem up from my heart. जो दिल को चीज छू ले, जो दिल से होता है काम, वो बढ़िया होता है और बहुत आनंद मिलता है. और मुझे ये आनंद मिलता था एक काम करने में, टू सी दैट कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर विग और समथिंग. मुझे इतना खुशी मिलती थी, मुझे लगता था सब मज़ा आ गया. एंड आई यूज्ड टू वॉच एवरी प्ले, आई यूज्ड टू लव वॉचिंग. आई रिमेंबर मैंने शायद घासीराम कोतवाल को पता नहीं अनेकों दफ़ा देखा होगा, बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड एवरी ईयर टू बी इन द रेपेट्री का जब होता है शो. सो आई यूज्ड टू वॉच ऑल ऑफ देम प्लेस एंड आई यूज्ड टू एंजॉय सीइंग हेयर पीसेस ऑल्सो, बिकॉज मेरा फोकस तो ज़रूर जाता था उस चीज़ पे जो मैंने बनाई हुई है. That's wonderful. Ma'am, would it be right? I mean, I don't know. As a inquisitive person myself, I need to know from you. Do people see wigs just as a tool of beauty, or as an identification of, or as an interpretation of identity and storytelling? Wigs in different things, they have different roles. In a
In a medical patient, it has a role because they lose their self-esteem, their dignity by the loss of hair. Because hair is something, it's a natural part of our personality. So it's a hair crown. Why did God give us a crown on the top? It frames our face. So it is a very important part of our personality, and I feel appearance plays a very important part. जैसे कि शब्द है personality. Personality word किससे बना? Persona. Persona, the Latin word also means the mask. मास्क कितना इंपॉर्टेंट है उसके बाद ही तो भीतर जाते हो. सो अगर एक करेक्टर के लिए भी विग बनाया, उसके लिए वो मास्क है उस मोमेंट के लिए, उस करेक्टर को उस फील में जाने. करेक्टर क्या है? अपने मैं को हटा देते हो ना. अपनी मैं को हटाना सिर्फ इट इज नॉट अपनी आदतें हटाना, अपना फिजिकल अपीयरेंस, हर चीज चेंज. तो विग्स उसमें बहुत मदद करती हैं टू चेंज योर लुक टू बी ऑफ दैट कैरेक्टर. वंस व्हेन यू एंटर दैट पर्टिकुलर फॉर्म, आप वो कपड़े ही बदलते हो जिसमें प्रैक्टिस करते हो जिस रोल को, immediately you get lifted and you start feeling, and the hair is something, it really makes a big difference. क्योंकि जब हम शीशा देखते हैं जब भी, तो immediate क्या होता है, in a regular person, not any character, nothing, but you definitely give a smile or feel happy. Oh, I'm looking good. When you feel low, आपके अगर जैसे मैंने कहा मेडिकल नीड्स में तो उनको बहुत परेशानी होती है, तो उनके लिए ऐसे इट इज जस्ट नॉट एस्थेटिक्स के लिए, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस इन हीलिंग. जब व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, तो हीलिंग भी फास्ट होगा. अब यही चीज आप करेक्टर के लिए लगा लो, तो उस करेक्टर के अंदर अपने आप को, उस किरदार को महसूस करना बहुत आसान हो जाता है जब वो उस तरीके से अटायर. फिजिकल हो गया, मेंटली उसको खुद वर्क करना है उस चीज के लिए. अगर डिस्गाइज करना, दैट इज एन आर्टिस्ट भी डिस्गाइज करता है. और विग्स का और भी रोल है, किसी का एक्सीडेंट से हेयर रूट से डिस्ट्रॉय हो गए, डिसफिगर हो गया, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. उसके लिए विग अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है. विग इज व्हाट? इट्स एन ऑल्टरनेट हेयर. एंड वंस व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग ये मेरे अपने हैं, ये मेरा बाल है, जब वो महसूस होगा, दैट इज द वे यू आर गोइंग टू कैरी इट ऑल्सो. मैम, बिकॉज जब किसी भी कैरेक्टर के लिए मैं उनके विग्स या कुछ बनाती थी, तो वो इसी तक सीमित नहीं था कि ये मेरा काम है कि मुझे विग बनाना है. नो, मैंने तब से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था. मैं अपने आप को उसी किरदार के रूप में देखती थी, भले वो इट्स अ मेल और अ फीमेल, इट नेवर मैटर टू मी. मुझे वो फील आते ही वो कैसे एक्सप्रेशंस होंगे, उसने यूं किया तो उसका बाल कैसे जुल्फ इधर जाएगी, या अगर वो जैसे मुझे याद है खूबसूरत बहू में वो चुटिया ऐसे घुमानी होती थी, तो मुझे फील होता था ये कैसे होगा. सो आई यूज टू स्टार्ट फीलिंग. आदि तो मुझे लगता था वो एनैक्ट स्टेज पे कर रहे हैं, पूछे तो मैं पूरी हीरोइन बन चुकी होती थी. वही एक्टर वही चीज बनाते हुए, फील करते हुए, आई यूज टू फील कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज कैसे आएगी. अगर ये चीज है, अगर किसी की मूंछ भी बनाई है, सो आई यूज टू ऑलवेज फील इन दैट वे कि as if I am that character, I am playing that role. Talking about wigs, you have talked about Sheen Wigs, Sheen Wigs Studio. So I need to know from you that if Sheen Wigs were a character, how would you like to describe its personality? Arey wow, such an interesting question. Really nice. I would never even thought of कि मुझसे कोई ऐसी चीज पूछ सकता है. Yes, शीन विग्स अपने आप में भी एक कैरेक्टर है जिसने जन्म लिया. जन्म कैसे लिया वो भी मुझको लगता है मेरी कोख से जन्म लिया. जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ 1980 में, 86 में मेरा दूसरा बच्चा आया, तीसरा 1989 में ये भी एक बच्चा है जो मेरे लिए आया. उन बच्चों की अपनी अपनी लाइफ शुरू हो गई, और ये बच्चा उसके बावजूद भी, दिस इज ऑलवेज क्लोज, वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ये लगता है इसके साथ साथ मैं भी बड़ी हो रही हूँ, ये भी बड़ा हो रहा है, बट इसकी एक अपनी पहचान, एक अपना गुडविल बना, एक कितनों से मुलाकात हुई, इसने कितनों से मेरी जान पहचान करवाई, दिल से रिश्ते जुड़वाए, कितना बड़ा होराइजन मिला मुझे. आई जस्ट फील सो दिस Sheen Wigs itself is a big identity on its own. अगर मेरी पहचान में मुझे शीन विग से पहचाना जाता है तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज ये भी कहते हैं ना, आपका बच्चा ही आपको बहुत नाम वाम लाता है. सो आई फील oh, it's a blessing. Sheen Wigs, the baby who has grown, and it is almost 4 decades, 37 plus years हो चुके हैं इसको. ये जवान, strong,
वेरी गुड हैंडसम बेबी है मेरा। सो मैम लेकिन तीनों बच्चों में से सबसे शरारती बच्चा कौन है फिर आपका? मेरे को अब आई बीइंग अ ग्रैंड मॉम, तो अब मेरे पास तो आई हैव माई ग्रैंड डॉटर्स जो बहुत शरारती हैं। बट एक स्टेज होती है, बच्चे तो बड़े इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू हो गई बेटी की बेटे की, बट माई ग्रैंड डॉटर्स दे फिल इन दैट पर्टिकुलर रोल। और यहाँ शीन विग्स जो मुझे जहाँ पे हर एक आई गेट पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। I couldn't even have imagined certain people. They might be a VIP, which I have not to name when they come, and neither they want to be named, because the hair issue is some people feel it's a very, very private matter. They do not want it that it goes anywhere in public. In public, but otherwise I feel on its own इतना एक दम है शीन विग्स में। और जो आने वाले हैं उनके लिए तो कहते हैं दिल से शुक्रिया फॉर चूजिंग शीन विग्स। आपने सोचा शीन में आने का, ये ही बहुत अच्छा लगता है, और आप आए सो कहते हैं ना हर मेहमान है। अब आई वी वेलकम एवरी क्लाइंट एज अ गेस्ट। जैसे घर में कहते हैं ना मेहमान आए तो उसकी बात ही अलग होती है, आप कैसे उसका करते हो। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज रिक्वायर्ड। तो NSD इज ऑल्सो बेसिकली देखा जाए तो वो भी एक क्लाइंट था, वो बात अलग है। उससे मेरी एक्टिंग इंस्पिरेशंस और मेरे ये दूसरे भाव भी उठे। मेरे में म्यूजिक की फीलिंग, आई कुड जस्ट सिंग और डू है, बट ऐसे कभी सोचा नहीं कि मैं सीखूंगी कुछ करूंगी। सो दीज थिंग्स दे हैव रियली मेड अ बिग बिग डिफरेंस, एंड आई थिंक इट्स नथिंग मोर टू से, and it's always less what I say. Ma'am, you just mentioned about music, you know. So not many know about your contribution to films. Would you like to put more light to it? Yes, I can. See, yeah, I have, when I used to be offered, that was Alkazi sir ne kaha, he was not the only one. Begum Abida Ahmed, who was into production of so many episodes of serials and some, she was the first lady, the wife of our president, President Ahmed. She was his wife, and she really kept on. She just met me once, but she kept on sending feelers and saying that she wants me to act in her productions. But I think destiny का अपना ही एक रोल होता है। So वो चीज़ें जब होनी होती हैं, तब नहीं हुई, जब नहीं हुई या अब हो गई तो मुझे उसमें भी खुशी है। बिकॉज मैंने हाल ही में थिएटर पे काम किया। थिएटर में आई एक्टेड द रोल ऑफ बूढ़ी मेहतरानी इन इस्मत चुगताई's दो हाथ। आई thoroughly enjoyed that character। सूत्रधार का काम किया इन सुनिए और कहिए, उसकी सूत्रधार थी। अभी हाल ही में एक और हिसाब बाकी, दैट वाज बेस्ड ऑन भीष्म सानीज नॉवल मुआवजे। उसमें एक बूढ़ी मेंटली डिरेल्ड वुमेन उसका रोल किया, पर उसका रोल एज इट इज क्या है बुक में नहीं, बट शी वॉज द डायरेक्टर टुक इट कि वो उसको सीक्वेंस को जोड़ने में प्ले के, शी वॉज द करेक्टर, वो जो पागलपंती में आके बोलती थी वो रोल प्ले किया। और आफ्टर द रोल यू नो व्हेन समवन फ्रॉम द ऑडियंस दे कम एंड मीट यू, और the people like you who are interviewing, they came and say, अरे मैम हमें तो पैलेस्टीन की याद आ गई, हमें ये याद। आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उसमें बिल्कुल जैसे होता है ना धस गए उसी चीज़ के अंदर, एंड यू कुड डू इट। इट वॉज जस्ट नॉट प्लेस के बाद भी अगर मैं देखूँ तो मैंने फिल्म्स में काम किया। मैंने अभी लेटेस्ट तो किया पन्ने में। पन्ने इज मूवी, इट्स अ फिल्म ऑन अ रिटायर्ड स्कूल टीचर who is you know very stern looking, और उसको बहुत दुख हुआ है स्कूल की जिस कारण भी वो वापस गई, टू सी हिस्ट्री के पेजेस मिसिंग है, दैट द पेन दैट शी हैज़ ऑन सीइंग दोज पेजेस। वो रोल किया। उससे पहले मैंने एक इंग्लिश मूवी में रोल किया एक्सप्रेशन में, एंड देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो शीन विग्स पे बनी थी, उसका नाम था स्ट्रैंडेड, एंड इट वाज स्क्रीन्ड एट गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, एंड दैट वाज ऑल्सो amazing story, a story which says the story of hair between two women, because it was on Sheen wigs, so it was a cancer patient की life, and me as जो हम उनके wigs बना रहे हैं, it took us through the emotional traumas that are faced by cancer patients, and how it helps when they come to us, and how it helps them to regain their dignity, those things. Ma'am, my next question is that
how does Sheenwigs elevate the spirit of these patients, you know, who come for this here transformation, if I say so? Because you just mentioned in the beginning that they come with low spirits, and then so how do you help them elevating their spirit? Yes. सबसे पहले, so when they come to us, it is though we know कि उनको विग की ज़रूरत है, पर हम ये नहीं सोचते हैं. हम सिर्फ ये सोचते हैं पहले इनकी जाने, इनका सुने. जब उनकी बात सुनते हो ना, और वो जब खुलते हैं, तो दैट पेन ऑल्सो फ्लोज आउट. बिकॉज आप दर्द में ना कोई डिसीजंस ठीक नहीं ले पाते हो. सो टू बी मोर फ्लूइड एंड अंडरस्टैंड, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. अक्सर यही होता है कि ऑब्वियस है, कहना और करना और सहना ये सब बहुत अलग होता है. अगर आपको पता लग गया कैंसर, एक ब्लो लगा, उसके बाद वो ब्लो एक्सेप्ट हुआ, आपको मालूम चल भी गया कि आपके बाल गिर जाएंगे, पर जब वो चीज जाती है, जाते जाते देखो कोई अपना हिस्सा चला जाए तो वो दुख बहुत होता है. तो उस दुख से आपकी हीलिंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप यू आर नॉट वेल. सो द बेस्ट इज इन दैट पर्टिकुलर थिंग, आप अपनी नॉर्मल लुक्स के लिए यू वेयर अ विग, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो कोई बात नहीं है, यू कैन इवन डू विद अ बैंडाना, दैट्स फाइन. इट इज फॉर योर ओन feeling confident, good, in good spirits, in high esteem. वो सब चीज़ें अगर आपको विग हेल्प करता है तो क्या है. अरे आज भी तो जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है वो नीज रिप्लेस करवा रहे हैं, जिसके जहाँ जहाँ किसी का लिवर रिप्लेस हो रहा है, जिसकी ज़रूरत है. तो अगर बाल चले गए तो बाल भी तो रिप्लेस हो सकते हैं. बस मन खुश हो सके जिस काम से, और इट हेल्प्स. So it really helps the people who come to us. It can be a complete hair loss, it can be a partial hair loss, it can be something like a frontal fibrosis जिसमें माथा इतना बड़ा हो जाता है. So all these things are very disturbing. जिसको जो जानता है, जिसके ऊपर गुजरती है ना, वो ज़्यादा समझता है. पर हमें भी उनका कर करके समझ आता है कि उनका दर्द क्या है, और उस दर्द को कैसे पेशेंटली सुन के समझकर उनकी क्या, वो भी एक कैरेक्टर है ना, वो थिएटर कैरेक्टर नहीं है तो वो भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है ना. किसी की वाइफ हो सकती है, किसी की बहन है, किसी की माशूका है, या खुद ही वो हीरो ऐसा है जिसके बाल चले गए. सो वो भी तो एक, वी ऑल आर कैरेक्टर्स. मैम बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैम हु आर एक्चुअली हेल्पिंग दीज पेशेंट्स, यू नो, लिविंग देयर लाइफ normally, you know, that they should not feel that something wrong has happened to them. So why do you think, what makes you a person with this, what is that ingredient or a quality that you think you have? मैं अपने लिए कभी मैं अपना अपरज नहीं कहती हूँ, नथिंग. मुझे लगता है ये भी हमारे कोई सोल कनेक्ट्स होते हैं, ये कोई तालमेल लिखा हुआ है. यहाँ बहुत हैं, हर चीज़ के लिए एक दुकान नहीं 100 दुकान है. एनएसडी के लिए भी एक तो नहीं था ना थिएटर विग्स बनाने वाले, अनेक होंगे, बॉम्बे से बन के आते थे इनके तब. सो ऐसा नहीं है, बट ये हमारा कोई कनेक्ट है, किसने किससे मिलना है. पर मेरा जिससे मिलना लिखा है, बस मुझे ये लगता है कि शिद्दत से उसका काम करो, उसको तसल्ली होनी चाहिए, उसको खुशी होनी चाहिए, उसको अपने आप को लगना चाहिए आई जस्ट लुक द सेम लाइक बिफोर. वो सिर्फ उठा के शोल्डर्स पीछे करके चल सके, ना कि ड्रूप करके जिंदगी जिए. Ma'am, theatre's ephemeral, and why do you think that, how does this fleeting nature of theatre gives it or makes it more powerful than cinema? Yes, they both have their own. I would say compare करने में किसी एक पॉइंट को पकड़ लो तो कर लो, बट दोनों के अपना हर वे में, बनाने में, दिखाने में, हर चीज़ करने में फ़र्क है. फॉर एन एक्टर, क्योंकि अब मैंने भी एक्टिंग की, मैंने जब एक्टिंग फिल्म में भी की और प्लेज में भी की, बट इन बोथ वेज आई वुड से फॉर मी आई एम कमिंग टू द अदर पॉइंट, एक्टिंग इज अ गेम विच यू लाइक टू प्ले. इतना आनंद, मैंने पहले भी कहा ना, आनंद बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मुझे उसको इतना आनंद आता था उस चीज़ में. सो एक गेम है, अगर आपको गेम अच्छा लगता है, वो भले आप जब परफॉर्म कर रहे हो, यू आर अ कैरेक्टर, वेदर यू आर ऑन स्टेज, आपको सिर्फ ये देखना है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन फ़र्क हो जाता है, आवाज़ का वॉल्यूम फ़र्क हो जाएगा, योर मूवमेंट्स, योर स्पेस मेक्स अ चेंज, बिकॉज यू आर डायरेक्टली बिफोर द ऑडियंस. देयर इज़ नो रीटेक. डायलॉग याद था, नहीं याद था, उसी मोमेंट पे संभाल लो, अपना नहीं,
को स्टार ने गलत बोल दिया, उसको भी आपने संभाल लिया। ये नहीं सोच सकते ओहो इसने गलत बोला, नहीं, अरे उसी टाइम पे संभालो। सो इट मेक्स यू बी देयर। सो आप अपने प्रेजेंट में थिएटर का अब मैं बताती हूँ हाउ इट इज अबव सिनेमा। इट मेक्स यू, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना, अपनी मैं को गुम कर दो, मैं हटा दो, वो थिएटर में इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क वन थिंग, एंड अपनी मैं को हटाना इज अनदर। टीम वर्क तो वो भी है, सिनेमा इज ऑल्सो टीम वर्क, इट्स नॉट टीम, बट इसमें अपनी मैं को गुम करते हो। कैसे? आप मैं को नहीं गुम करोगे तो आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। अपनी मैं, मेरी ये है, मेरी ये आदत है, दिस इज द वे आई वॉक, दिस इज द वे आई टॉक, नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वैसा ही होना चाहिए। वो तो सब कुछ हटाओगे तभी तो उस कैरेक्टर का लोगे। सो यू आर कॉन्शियसली, यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑल द टाइम, बी देयर, बी देयर, बी देयर, बी देयर कहते हैं ना, व्हाई बी देयर? व्हेन यू आर ऑन द स्टेज देयर इज नो रीटेक, यू हैव टू बी very conscious of your surroundings, very conscious of your own role, your dialogues, what you have to depict, and what are your co-actors, what is happening. So you have to be conscious. तो उसके अंदर आपको be there वाला जो एक फंडा है वो constant याद रहता है। सिनेमा में you get a chance, cut, cut and cut, not this. So वहाँ एडिटिंग का काम बहुत बढ़ जाता होगा। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस इस जितना मर्जी सिखा दे डायरेक्टर, पर उस टाइम पे व्हेन यू आर ऑन स्टेज तो कौन है? यू आर द हीरो, यू आर द हीरोइन, उसको उठा दो या बहा दो, ये आप पे है। Ma'am, how do you want people should remember you? Somebody, you know, who has been an active contributor to theatre, films and Sheenvik Studio, or someone, you know, or do you personally, you know, take them as threads of one larger story? नहीं, आई विल से माइंड योर माइंड एंड यू विल बी फाइन। सबसे सिंपल फंडा तो ये है जिंदगी का। और प्लीज प्लीज, जिंदगी जीने का नाम है, जियो, पूरा दिल से जियो, एक स्टैग्नेंट और बोरिंग लाइफ की तरह मत जियो। जीवन है तो उतार भी होंगे, चढ़ाव भी होंगे, यही तो है। नदियाँ भी तो यही कहती है, नदियाँ चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा। वो ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, कांस्टेंट सेम फ्लो भी करती है। सो लाइफ शुड हैव सम किक्स, सम एक्साइटिंग मोमेंट्स, समथिंग जिसमें एड्रेनल रश मिलता है ना, उससे बड़ा आनंद मिलता है। तो आपके कोई पैशंस होने चाहिए। काम एक चीज़ है, परिवार एक चीज़ है, पर एक ज़िंदगी के अंदर शौक रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो ज़िंदगी शौक में ही गुजर जाती है। सो बहुत ज़रूरी है, द मोर यू फील दैट यू हैव, जैसे फॉर मी, मैंने भले अगर कभी सीखी होती राइफल चलानी, आई एम श्योर मैं ऐसा निशाना लगाती, बिकॉज आई हैव बीन वेरी गुड। जो छोटे छोटे गेम्स ही होते हैं उसके अंदर, वैसे आई हैड इवन आई एंजॉयड माई हैंड्स ऑन 0.9 ऑप्टिकल रेजोल्यूशन पिस्टल पे भी। मतलब ड्रमिंग करती हूँ तो ग्रुप में, आप अकेले हो ना हो, ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्रुप में एक ऐसी रिदम चलती है जो एक के दूसरे, दूसरे के तीसरे से दिल को जोड़ती हुई आपको, और जो वो ध्वनि, जो वो मधुरता आती है, इट जस्ट नॉट हिट्स द ऑडियंस। आपको पहले यहाँ आती है, आपको यहाँ आती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। आप मुस्कुराए तो जग मुस्कुराया, कहते हो ना, आप रोए तो जग रोया। आप मुस्कुराते हो, आपके अंदर दैट किक, दैट्स एनीथिंग दैट गिव्स यू अ हैप्पीनेस, अ किक इन लाइफ। प्लीज गो अहेड, डू दैट। जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जिसके जिंदगी में उतार चढ़ाव ना हो, दुख और सुख ना हो। हाँ, आनंद तो स्टेज बहुत ऊंची है ना, आनंद का तो वो कुछ ऑपोजिट है भी नहीं ना। वो मोमेंट्स भी मिल जाए ना आनंद के, वो भी बहुत होता है। And ma'am, if I'm not wrong, I think you do enjoy scuba diving, and you are challenging. I think life is not challenging you; you are challenging life, you know, at every step. So, without belittling your own confidence. So, please tell me about the other interests that you have that keep you going all the time. I just feel I have to be very very careful, बिकॉज विद एज जो हड्डी वड्डी हिल गई वो जुड़नी बहुत मुश्किल है। पर मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। आई हैव डन स्काई डाइविंग, आई हैव डन स्कूबा डाइविंग, आई हैव डन पैराग्लाइडिंग तो बहुत दफ़ा किया है। अभी तो लास्ट मैंने बीर बिल्डिंग से किया था। और आई हैव इवन डन, स्कूटर नहीं चला सकती सड़क पे, और जेट स्कीइंग किया था ओशन पे। और ओशन में भी ऐसा जोश आ जाता है कई दफ़ा जो कंट्रोल में नहीं होता, विच इज़ नॉट गुड। दैट इज़
वो जो मैंने एड्रेनलिन रश और किक बोला है ना, उसके पैरामीटर्स को भी कंट्रोल करके रखना आना चाहिए. आई फेस दोज थिंग्स एंड द वे आई वॉज ऑफ माई जेट, ऑफ माई द स्कूटी ऑन दैट, और ऐसी ओशन में दूर जहाँ आउट ऑफ दैट जोन विच दे गिव ना, कि इसके बाहर मत जाना, देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड आई वॉज थ्रोन आउट. सो आई नेवर न्यू एनीथिंग. अभी ये भी मालूम था कि पता नहीं मैं निकल तो सकती नहीं ओशन से. तो वो मोमेंट में भी मुझे लगा हो सकता है नीचे से शार्क ही ले जाए मुझको. सो मैं अपने आप से गाना ही गा रही थी, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, और उतनी देर में वो ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ चले गए. देखी ट्रैक एंड दे ट्रेस्ड मी. And ma'am, finally, I want to know from you that, in the beginning only you said that I owe my theatrical journey to none other than Ibrahim El Qazi sir, who has transformed the Indian theatre. So, how, does his learnings or his teachings or his, I would say, experiences, working with him, transformed or change you as a person? Or the spirit in you? Yes. See, number one, discipline. Discipline कहना आसान, अनुशासन उस हद तक उनसे सीखा कि अनुशासन किसे कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनग्रेन्ड हो जाए आपकी लाइफ में. अनुशासन से जब आप चीज़ें आपकी होती हैं, थिंग्स आपको करनी नहीं पड़ती, हो जाती हैं. तो वो ऐसे डिस्क्राइब करते थे. मैं कहती थी सर करनी नहीं पड़ेंगी, हो जाएंगी, क्या होता है. वो कहते थे जैसे तुम्हें प्यास लगती है, तुम पानी पीने जाते हो, तुम कभी कहती हो कि मैंने एफर्ट किया पानी पीने गई हूँ? मैं कभी नहीं कहती हूँ ना. तो ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड कि चीज़ें होने लग पड़ती हैं. ये दिस इज द आर्ट, दिस इज द गिफ्ट दैट यू गिव व्हेन यू डिसिप्लिन योर लाइफ. यू डिसिप्लिन हर चीज़. एक अपने आप को खाली नहीं रखना चाहिए, बिकॉज एम्प्टी Mind is a devil's workshop. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो अपने आप को जरूरी नहीं है हर चीज अब हम लर्निंग ही कर सकते हैं, बट देन जहां मैंने अपने बताया ना जिंदगी के पैशंस, दे कीप यू एंगेज्ड. दे कैन बी अ पर्सन जो वोरेशियस रीडर है, पढ़ता ही जा सकता है, पढ़ता ही जा सकता है. पीपल लाइक मी, आई फील आई नीड सम एक्टिविटी. सबका अपना अपना है. मैं जिस चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व होती हूँ, मेरा अपना उसमें योगदान होता है. सो उसके अंदर मुझे जो रस मिलता है वो हर रस से ऊपर है, और ये मुझे लगता है दिस कम्स विद अनुशासन. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable time and sharing your insights with us. And it was lovely interacting with you. Thank you. Thank you. Thank you.